Good morning, students. Now, the topic of today's discussion is the drug or the variety or the sub part of Unit 2 जो कि हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में. उसमें एक टॉपिक रह गया था क्विनॉन्स. ठीक है. Now, in this, you need to understand what is the meaning of the term quinons is. You can see. First of all, you need to understand what is the meaning or what is the definition of the term quinon is. Quinons are oxygen containing compounds which are essentially the oxidized homologous of aromatic compounds or aromatic derivatives and are characterized by a 1,4-diketocyclohexa 2,5-diene pattern, that is paraquinons, or possibly by a link by a 1,2-diketocyclohexa 3,5-diene pattern that are known as orthoquinones. In naturally occurring quinones, the dione is conjugated to an aromatic nucleus, that is benzoquinones, or conjugated to a condensed polycyclic aromatic system, that is naphthalene, that are present in naphthoquinones, anthracene, anthraquinone, 1,2-benzoanthracene, anthracyclinones, naphthodiestrane present in napirodiestrons, पेरेलिन, फिनेंथ्रीन एंड सो ऑन. ठीक है. ये आपके नेचुरली अकरिंग क्विनॉन्स हैं जो कि हमारे प्रेजेंट हैं. ठीक है. नेचुरली अकरिंग है ये. डिफरेंट हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट है. ठीक है. आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. 1,2-बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजोक्विनोन. ठीक है. 6 मेंबर रिंग, 2 कीटोन ग्रुप. ये है 1,4-बेंजोक्विनोन पोजीशन चेंज. 1,4-नेफ्थोक्विनोन. नेफ्थोक्विनोन में 2 रिंग्स होती हैं और 2 आपके क्विनोन वो हैं कीटोन ग्रुप. नाउ एंथ्राक्विनोन ग्रुप जहाँ पे आपके क्या क्विनोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 9-10 एंथ्राक्विनोन. ये आपका एंथ्रासीन मॉइटी, एंथ्रासीन रिंग प्रेजेंट है इसमें. नाउ कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक. What are the properties, extraction, separation and characterization of quinones? इसमें आपकी properties हैं. Free quinones are practically insoluble in water. ठीक है. जो free quinones हैं आपके वो practically insoluble होते हैं water में और extract हम कर सकते हैं उन्हें by the common organic solvents and their separation requires the common chromatographic techniques. Common chromatographic techniques के through हम इन्हें separate out कर सकते हैं. किसको? क्विनॉन्स को. बेंजोक्विनोन्स एंड नेप्थोक्विनोन्स कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड. जो बेंजोक्विनोन कैटेगरी है या नेप्थोक्विनोन कैटेगरी है वो स्टीम डिस्टिल हम कर सकते हैं. नाउ द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्विनोन्स आर ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्शन इज अचीव्ड विद वाटर और विद रादर डाइल्यूट हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस. ठीक है. रिकवरिंग द रिड्यूस फॉर्म्स दैट इज क्विनॉल्स एंड एंथ्रॉन्स इज डेलिकेट. They can be work at very low temperature away from light and under nitrogen is required to avoid their spontaneous oxidation during the procedure of extraction. ठीक है. ऑक्सीडेशन के वजह से spontaneous oxidation की वजह से हम इन्हें low temperature पे recover करते हैं और away from light. Under nitrogen is also required to avoid their spontaneous oxidation during the process of extraction. Now the characterization. Various color reaction can be used to characterize quinones. The main one is Bontrager's reaction, which can be obtained by dissolving the quinone in alkaline medium. The solution develops a vivid color which ranges depending on the structure and the constituents from orangey red to purplish violet. It also can be used by coloring TLC plates also. ठीक है. TLC plate के थ्रू भी और केमिकल टेस्टिंग फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के थ्रू भी हम इनका कैरेक्टराइजेशन देख सकते हैं कि इसमें क्विनॉन्स प्रेजेंट हैं नहीं हैं, क्या हैं, कौन से हैं. नाउ द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्विनॉन कंटेनिंग ड्रग्स आर Natural benzoquinones in the strict sense of the term have no therapeutical application. जो natural benzoquinone कैटेगरी है क्विनॉन उसकी ये स्ट्रिक्ट सेंस में टर्म है. नो उसका कोई थेराप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं है. हाउएवर
The reduced form of 1,4-benzoquinone, that is hydroquinone, occurs as a glycoside, namely arbutin, and that this molecule possesses strong urinary antiseptic properties. ठीक है, strong urinary antiseptic properties हैं 1,4-benzoquinone. Many naphthoquinones are antibacterial and fungicidal. बहुत सारे naphthoquinones एंटीबैक्टीरियल एंड फंजीसाइडल एक्टिविटी भी ओबे करते हैं. एंटी प्रोटोजोल एंड एंटीवायरल एक्टिविटीज हैव बीन डिस्क्राइब. ड्रग्स कंटेनिंग 1,8 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स. ठीक है, जिस भी ड्रग में या कॉन्स्टिट्यूएंट में आपके 1,8 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि अभी ग्लाइकोसाइड में आपने पढ़ा था लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए सेना. ठीक है, सेना आपकी क्या है, लेग्जेटिव ड्रग है. एंड हैव बीन प्राइज फॉर दिस एक्टिविटी फॉर सेंचुरीज. फॉर अ लॉन्ग टाइम सम क्विनोन कंटेनिंग ड्रग्स हैड बीन प्राइज्ड एज डाइज. कुछ क्विनोन कंटेनिंग ड्रग्स को डाइज की तरह भी यूज़ किया जाता है. कौन कौन से प्लांट को डाई की तरह यूज़ करा जाता है? रूबिया टिंक्टोरियम एलिज़ेरिन, एल्काना टिंक्टोरिया एल्केनिन. रूबिया टिंक्टोरियम इज़ अ प्लांट नेम, मतलब बोटेनिकल नेम ऑफ अ प्लांट. उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है नेम एलिज़ेरिन. एलिज़ेरिन यूज्ड एज डाइज. एल्केना टिंक्टोरिया इज़ अ नेम ऑफ प्लांट. इसमें आपका एल्केनिन यूज होता है एज अ डाई. दे ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन ऑल्सो लाइक कर्मोकोकस वेमिलियो, कोकस केटाई, कोकस कैक्टाई. ठीक है. क्विनोन्स एंड एलर्जी. नाउ यू कैन सी क्विनोन्स एंड एलर्जी, मतलब वेरियस ड्रग्स इनसाइड द कैटेगरी क्विनोन्स हैव, उनकी वजह से एलर्जी भी होती है. द एलर्जिक पोटेंशियल ऑफ मैनी क्विनोन्स like benzo and naphthoquinones is due to the fact that they act as a haptenes by combining themselves through their nucleophilic centers with amine and thiol functions on macromolecules. They induce dermatitis by sensitization. For example, some primrose species of Asian origin can cause in gardeners and florists localized pruriginous reactions and urticaria और एरिसीपिटायस टाइप रैशेज ऑन द आईलिड्स. ठीक है, ये हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज हैं जो कि हमारी क्विनॉन्स के क्विनॉन कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से हो जाती है. जैसे कि प्राइमरोस स्पीशीज़ हैं एशियन ओरिजिन की, जो कि कॉज करती है गार्डनर्स में और फ्लोरस में लोकलाइज प्रोरिजिनस रिएक्शंस एंड अर्टिकेरिया. और एरिसीपिटस टाइप रैशेज ऑन द आईलिड्स, एक टाइप के रैशेज होते हैं जो आई लिड्स के ऊपर हो जाते हैं, चीक्स पे, चिन पे, फिंगर्स पे, हैंड्स पे, फोर आर्म्स पे. किस किस में होते हैं? बेसिकली ये गार्डनर्स में या फ्लोरिस्ट में, जो कि हमारे फूलों के टच में रहते हैं. ठीक है. द रिस्पॉन्सिबल क्विनॉन इज, इस एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्विनॉन है वो कौन सा है? 2-methoxy 6-pentyl benzoquinone, that is primin. You can say that constituent basically as primin. This is the structure of primin. You can see ये एक हमारा एलर्जिक कंपाउंड है क्विनॉन कैटेगरी में. नाउ अब जितने जितने इसमें कैटेगरीज हैं जो कि हमने स्ट्रक्चर वाइज अभी गिना था, उनको हमने धीरे धीरे पढ़ते जाना है. नैप्थोक्विनोन कंटेनिंग ड्रग्स है आपकी. They are yellow or orangey pigments essentially isolated from plants and are characteristic of some angiosperm families including Abenaceae, Droseraceae and Bignoniaceae. They are almost 1,4 naphthoquinones and they are in very rare cases 1-2 naphthoquinones. ठीक है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं 1-4 नेफ्थोक्विनोन्स में और बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं 1-2 नेफ्थोक्विनोन्स में. ठीक है. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर जो बिलोंग करता है आपका नेप्थोक्विनोन कैटेगरी को, जगलॉन एंड प्लम्बेगिन. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, मगअप करने हैं. एक हमारा स्ट्रक्चर है लॉसोन. लॉसोन हमारा मिलता है आपको लॉसोनिया इनर्मिस, दैट इज मेहंदी. ठीक है, मेहंदी जो कि हम यूज़ करते हैं. थैंक यू. बेसिकली हमने नेप्थोक्विनोन्स पढ़ने थे. ठीक है, नेप्थोक्विनोन कैटेगरी हमारी थी
इस यूनिट 2 के सब पार्ट में आपने पढ़ना था इरिडॉइड्स, ठीक है, टर्पिनॉइड्स एंड नेप्थोक्विनोन का इंट्रोडक्शन. So this is all about naphthoquinones, iridoids and terpenoids. If you still have any single doubt about this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section too. Thank you.